ओके जी, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, लेट्स स्टार्ट. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 3D Educators, Trainers and Consultants. My name is Dr. Mohammad Shaheen Wafat, and I'm the Group President of 3D Group, where we have multiple organizations. One of the organizations is 3D Educators that has been involved in the training and development. And as far as concerned, the other organizations, they are basically a developing company and ICT company. So we are also providing the services of AI and software and obviously infrastructure as well. Almost you have seen my background. So I have been worked in many countries. Lastly was when I left from the organization, I was a global head in UK, and I'm handling the 35 countries as a group portfolio head. Then I had started my own work, and alhamdulillah, that's running different things. So we already have organizations in UK as well, and some, you can say, the project offices in the Malaysia and in the Saudi Arabia. So we have just recently started in these two countries. Malaysia we have been working since 5 years, but as far as Saudi, we have just recently started. So before going to start the course and what is important and why you are here for CISA, what market is actually demanding. So just like your background, what's your background, what you are doing, okay, and what are further prospects. So I will start from the online people who are here. So Ehsan, could you please introduce yourself, where from you, and what you are doing? Basically, starting to all, my name is Ehsan Ullah. Basically I'm from Pakistan. By education, I am associate member of Institute of Cost and Management Accountants. And afterwards, my majority of the experience is from internal and external audit. From last around 2 years, 1.5 years, I joined BDO Germany as an IT auditor, and from the same time, I am working in IT audit of the BDO Germany. Why I chose CISA? Obviously, when I came to this field, I had some of the information about the CISA because in ICMP, the last course, there is a subject called Information System in IT Audit, where the CISA manual was the core book. We studied that book at that time, but having the certification, when I went through the content of that and I'm now studying with this, the certification gives you an insight about what's the importance of doing that. So secondly, when you are working in Europe, obviously you have to update yourself in terms of the certification, qualification, and any new things, because my office also demands something from us as well. And secondly, prospects with respect to the IT audit in Europe, I would say that nowadays, because I did my articles on KPMG, and many of my friends are still working over there, and people are moving from KPMG Pakistan to all over the world, US, UK, even Europe में भी मतलब IT audit की demand बहुत ज़्यादा हो रही है even after Corona. Now the things are getting with the AI, काम बहुत मतलब manual intervention बहुत काम हो चुकी है, तो system पे जितना reliance ज़्यादा होगी, obviously उसकी फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा, तो this is the sole reason that why I had an idea to switch to this field before मुझे 1.5 साल लगा था. So this is my brief background. Thank you. Yes. ये सेकंड नंबर पे नाम नहीं आ रहा, सुफील चैनल लिखा हुआ है. So who is there and could you please introduce yourself? जरा जोर से बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. मेरा नाम यावर और मैं इसलिए फाइनल मेरा 2 years एक्सपीरियंस है. मैं रवि विश्वास डॉक्टर ऑडिट का, और मैं अपना IT ऑडिट कंप्लीट करना चाहता हूँ. ठीक है.
ओके बिलावल, थैंक यू जी। जनाब आप फिजिकल बैठे हैं जी। Hello everyone, my name is Abdurrahman and currently I'm consulting in technology related to business at Ernst & Young in Pakistan. My educational background consists of accounting and finance with graduation from Canada. I've completed my internal audit certification from the IIA a few months ago. My primary experience is in internal audit and IT audit. The reason I've chosen to do CISA is to diversify my profile. As earlier it was mentioned that the field of technology is emerging, and I believe that combining my accounting and finance side with technology will give me that competitive edge and diversify my profile. राइट, थैंक यू अब्दुल। यस प्लीज नेक्स्ट जी। अपना क्या नाम है तुम्हारा? हमजा। Assalamualaikum. My name is Hamza, and I have done my bachelor's from University of Institute of University, and currently I am doing job in network and security audit, and that's it. ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शंस। मैं थोड़ा सा ये अब इसको एलैबोरेट करते हुए जाते हैं कि कुछ लोगों का बैकग्राउंड है इंटेल ऑडिट का, दैट्स ग्रेट। सम पीपल आर बेसिकली परसुइंग दैट they would like to go for the IT audits, and obviously some are new, so थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई हैड डन सीसा इन 1999, ओके, एंड बिफोर दैट मैं ऑडिट से इसलिए कनेक्टेड रहा कि मुझे एक मैंने ERPs में इम्प्लीमेंटेशंस की, और इट वाज इन 1995, और वो पहले HBL के साथ कनेक्ट हुए, देन आई कनेक्टेड विद दी IN लिली, उसका तो पूरा सब कुछ हमने किया, देन हबीब ऑयल, और फिर और छोटी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जिसके में बड़ा सीखने को मिला। नेस्ले का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम मैंने खड़ा किया था, 1 to all, जो आज लेके फिर रही है पूरी मार्केट में, जो उस ज़माने में टैबलेट नहीं होते थे, तो PDF मंगवा के हमने प्रोग्रामिंग की थी उसकी। सो दैट वाज एन गुड एक्सपीरियंस। लेकिन हमें वहाँ पे कुछ आइडिया हुआ कि नाउ थिंग्स आर बिकम सिस्टम बेस्ड, तो लोगों की एक आवाज़ आ रही है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन गेट दी अश्योरेंस। जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना बड़े तेज होते हैं, वो कहने लगे यार सिस्टम में तो चला गया डेटा, अब ये डेटा जो है ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये वही डेटा है जो गया था, या उस डेटा के अंदर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो गई, ठीक है, या वही हमारी एश्योरेंस कैसे होगी। आप कह रहे ठीक है, बट व्हाट आर द सिस्टम इज सेइंग। तो हम खोज में लगे कि यार हमने कुछ चीज़ें खड़ी तो की हैं जो लॉग बना रही हैं, जो चीज़ें कर रही हैं। उस ज़माने में इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर नहीं थे, यानी कि हमारी डेटा बेस भी जो होती थी ना वो हमें डिसेंट्रलाइज रखनी पड़ती थी। मैंने पूरे पाकिस्तान में जब हमने सबसे पहला काम जब उसका किया हबीब बैंक का, हबीब बैंक का तो खैर वो काम बड़ा डिफरेंट था, लेकिन असल काम FMCGs में होता है। FMCGs में बहुत डेटा आता है, बहुत डेटा, तो आप मिलियंस ऑफ डेटा चला रहा है। और नेस्ले की शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, देयर आर 15,000 प्रोडक्ट लाइन्स, ठीक है, तो उसका भी बहुत डेटा है। अब वो डेटा जब आ रहा है ना, तो उस डेटा को संभालना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। ना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग थे, ना फाइबर थी, ना वाईफाई थे, ना आपके पास रेडियो लिंक। तो एक PTCL का कनेक्शन होता था जो कि हम DXX डायरेक्ट सीरियल लाइन होती थी वो हम लेते थे, एंड इट्स हाईली एक्सपेंसिव कनेक्शन। इवन दो कि मैंने इंस्टॉल किया PTCL में NT2 ISDN मैंने इंस्टॉल किया था जाके, वो किसी का हो नहीं रहा था, तो पढ़ के मैंने उसको इंस्टॉल किया कि ये कैसे चलता है। जिस ज़माने में 128 kbps का कनेक्शन मिलना शुरू हुआ था, लेकिन वो DXX खैर वो थी। फिर हमारे पास डेटाबेस इतनी स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ जाता था, लोड पड़ गया था, तो सर्वर भी डिसेंट्रलाइज होते थे, डेटाबेस भी डिसेंट्रलाइज होती थी, और सब कुछ डेटा उठ के आता था जब आखिर में, तो वो बाकायदा हमें उसको सीक्वेंसिंग के साथ डेटा फेंकना पड़ता था। तो अब यहाँ से जब बात शुरू हुई तो देन आई थिंक कि कुछ ऐसा है। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि एक कोर्स है उसका नाम है सीसा। वो वाहिद एक आदमी थे जिन्होंने मुझे पूरे पाकिस्तान में ये बात बताई कि सीसा कोई कोर्स है। अच्छा, वो भी मेरा कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ कि मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मेरे पर 93 से शुरू हो गए थे, तो हम सिंगापुर दुबई जाते रहते थे, तो मेरी मुलाकात जहाज में हुई थी।
वो भी कंसल्टेंट थे। तो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा यार सिस्टम ऑडिट कोई चीज़ होती है। मैंने कहा ये क्या होता है? कहने तुम आओ मेरे पास, मैं बताऊँगा। खैर उन्होंने आइडिया दिया, बहुत मुश्किल से मैंने किताब मंगाई अमेरिका से, और वो फिर आई मेरे पास और मैंने पढ़ा और पेपर दिया। उस ज़माने में साल में एक दफ़ा पेपर होता था सीसा का, जो रीजन प्लाजा में होता था, ठीक है। अब वो रीजन प्लाजा भी ख़त्म हो गया है। तो वो उस ज़माने मैंने किया। देन ऑब्वियसली जो नेक्स्ट था वो ये था कि मैं SDF के साथ एसोसिएट हुआ, फिर ISO की अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई, बहुत कुछ पता लगा। ये तो हुआ बाद में, फिर हम इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में हमारे प्रोजेक्ट्स आ गए, वहाँ स्टार्टिंग हो गई, वहाँ पे काम शुरू हो गया। 2003 में इसाका ने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे साथ एग्जामिनेशन बॉडी का मेंबर बने। तो आई हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट का एसोसिएट डीन एज काम कर रहा था। ILM एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका मैं वहाँ पर एज एसोसिएट डीन काम कर रहा था। तो वह हम लोग लीडरशिप के कोर्सेज डिज़ाइन करते थे और साथ में उसको पूरी दुनिया में लॉन्च करते थे। ILM दुनिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है 3.5 लाख कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक है। तो जोनाथन इवांस मेरे साथ, टॉम ब्रेनन और ये सब लोग जो लीड करने वाले लोग, हाई एंड के ऊपर मतलब बैठे हुए लोग थे, उनके साथ मैंने चीज़ें बनाई। तो 2003 में उस बॉडी का मुझे आइडिया था, वहीं से कनेक्टिविटी मिली। तो 2003 में मैं उनकी बॉडी का मेंबर बना और फिर मैंने पेपर डिज़ाइन किया और फिर मुझे पता चला कि पेपर बनता है कैसे इंटरनेशनल बॉडी में। वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि पेपर बनता है। पूरी में ट्रेनिंग दी छोटी सी, आप समझ लो। नेक्स्ट ये था कि फिर मैंने एक सीसा का मैनुअल लिखा जो मैं आपसे शेयर करूँगा। 2004 में जो मैंने मैनुअल लिखा, तो दैट इज बेसिकली गाइडलाइन टू हाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड हाउ यू कैन पास सीसा, ठीक है। तो वो उसको भी लोगों को कुछ नहीं पता था। फिर पाकिस्तान में 2006 में आके मैंने उसको लॉन्च किया सीसा को, तो भी लोगों को नहीं पता था, मुझे बताना पड़ गया लोगों को कि भाई क्या चीज़ है। एंड देन अचानक से जो है वो डिलॉयट ने एक छोटे से डिपार्टमेंट को निकाल के एक बड़ा डिपार्टमेंट क्रिएट किया, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का। और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसके ऊपर डायरेक्टर्स हायर किए। मुझे भी ऑफर आई थी, लेकिन मैंने कहा मैं यार जॉब छोड़कर अब जॉब करने नहीं आया हूँ, काम करने आया। तो वो इतनी बड़ी जॉब मेरे पास, ठीक है, आप सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, कोई मजाक नहीं होता ग्लोबल हेड की नौकरी छोड़ के आ जाए। तो खैर वो जो है वहाँ से फिर एक हाइप क्रिएट हुई और एक लोगों ने पाकिस्तान में भी करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कोई मैंने सीसा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर 23-24 हज़ार लड़कों को ट्रेन किया, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, UK में, मलेशिया में, मिडल ईस्ट में और यूरोप में भी। वहाँ पे ज़रा सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग में फटाफट कराना होता है आपको, जो भी 9 to 5 के बाद आप घर जाओ, बूट कैंप होता है, आप समझ में आए। यहाँ जितना हम डीपली जाके पढ़ेंगे शायद हम वहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो पाकिस्तान में ब्लेसिंग है, तो पैसे भी कम दो और टाइम भी ज़्यादा लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अच्छा है। तो खैर राइट नाउ जो है वो इसके हवाले से मज़ीद आगे बात करते हैं कि क्या सिलसिला है। अच्छा, हम पहले एक ओवरव्यू थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं, दुनिया जब से बनी ना तो इंसान ने गिनना शुरू कर दिया, ये उसकी खसलत अल्लाह ने दी, ही काउंट्स द थिंग। और पहले उसने उंगलियों पे गिना, फिर उंगलियों की मुर्खियों पे गिना, फिर उसने उसको बकाया तौर पर डंडी लगा के गिना जो रोमन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप्स चेंज होना शुरू हुई, फिर सिस्टम बन गए, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड डिफरेंट थिंग। एवरीथिंग एक्चुअली यू आर काउंटिंग समथिंग, दैट वी कॉल इट कैलकुलेशंस, ठीक है ना, विद कैलकुलेशंस। तो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर सामने थे, ठीक है, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, ये सबको पता था और ये हर दौर में रहे होंगे या दिन दौर पर। लेकिन एक चीज़ शुरू, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन। एंड नाउ दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ व्हाट इज कंप्यूटेशन? तो कंप्यूटेशन जो है वो मिसाल के तौर पर जैसे आप कह रहे हैं कि 2 + 3 = 5, ओके, ये आपने कैलकुलेटर में डाला, ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा, क्योंकि कैलकुलेटर के पास पता है कि ये एक नंबर है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक नंबर है, इसके बाद ये इक्वल्स टू करेंगे तो ये आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो आपको
जमा करके दे देगा, जो भी है। लेकिन जब आप यही चीज उठा के कंप्यूटेशन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और मैं उसे बोलूंगा कि 2 है, ये प्लस है, ये 3 है, तो हो सकता है कि वो उसको 2 3 लिख दे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये हो सकता वाली बात मैंने क्यों की है कि कंप्यूटेशन के अंदर कंप्यूटर का जो मकसद है वो है टू फाइंड एंड टू प्रोवाइड द रिजल्ट बाय डूइंग सम एनालिटिकल वर्क, कि हम कोई आउटपुट दें तो वो एनालिटिकल हो, बजाय इसके कि वो कैलकुलेटर बेस्ड हो, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटेशन में जब ये बात शुरू हुई तो ये कहानी 400 साल से चल रही है, ये ऐसा नहीं है। मेरी जो पहली पीएचडी एआई की है वो मैंने 200 साल पहले एक ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बुक पढ़ी, ठीक है, जो कि लंदन लाइब्रेरी में रखी हुई थी, और मैं उस बुक को पढ़ के पागल हो गया कि यार इस बंदे ने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अब होने जा रही हैं, और अभी भी नहीं पता लोगों को कि वो कैसे हो जा रही है। वो 200 साल पहले उसने वो पूरे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे एज अ कंप्यूटेशनल वे में ब्रीफ किए, फिजिक्स की बुक है, ठीक है। तो दुनिया काम कर रही है, आपने बहुत सारी चीज़ों को जाके देखेंगे, बात लंबी हो जाएगी तो उस पर जाना नहीं जा रहा मैं, लेकिन आपको नजर आएगा कि क्या क्या दुनिया में लोगों ने किया। तो कंप्यूटेशन पे जब काम होना शुरू हुआ तो फाइनली ये हुआ कि दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर के थ्रू एडिशन 1935 में हुई, और 1935 में जो एडिशन का प्रोसेस हुआ उसकी हाइट थी 5 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, और 2000 लोग उसमें काम कर रहे थे, और उन्होंने सिर्फ 2 नंबर को ऐड किया, हाउ वी कैन गेट द आंसर थ्रू कंप्यूटेशन। आंसर वही आना था 4 या 5, बट नाउ द थ्योरी इज एंटायरली चेंज। उन्होंने कहा ये 2 जो है ना, दैट 2 इज नॉट 2, दैट प्लस इज नॉट प्लस, दैट 3 इज नॉट 3, it actually a symbol, it's some sort of any symbol, ठीक है, जैसे कि @ एक symbol, जैसे कि ब्रैकेट एक symbol। अब इस सिंबल को, क्योंकि पहले काम दायर बातें हमारे यहाँ इंग्लिश कंट्रीज के अंदर हुआ, तो उन्होंने उस सिंबल को कंप्यूटर की एक मशीन में रिकग्नाइज कराया थ्रू एस्की कोड्स। वो लंबी कहानी है कैसे रिकग्नाइज, आगे तो मैंने रिकग्नाइज कराया, उसको उन्होंने रिकग्नाइज कराया कि ये जो नंबर है इसका रिप्रेजेंटेटिव ए है, इसका रिप्रेजेंटेटिव बी है। तो पहले बड़ी एबीसीडी, फिर छोटी एबीसीडी, फिर नंबर, फिर स्पेशल नंबर। तो आपने पढ़ा होगा एस्की कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो 0 से लेकर 255 तक होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारा कीबोर्ड नजर आता है। फिर बाद की बात है, लोगों ने कहा हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं है, तो फिर यूनिकोड आए जो कि 16 बिट है और 32 बिट है और 64 बिट है, जिसमें दुनिया की करोड़ों सारी लैंग्वेज है सब सिंबल। ये सिंबल जब गया सिस्टम में तो सिस्टम ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसने बताया कि ये एक नंबर है जो कि यूजर कह रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक नंबर है, और ये प्लस जो लगाया है इसलिए एक ऑपरेटर है, इस वक्त ये ऑपरेटर है, और ये +3 जो उसने लगाया है ये भी एक नंबर है, तो उसका आंसर 5 होना चाहिए। उसने होना चाहिए पे आपको दिए देता है कंप्यूटर। कंप्यूटर कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देता, पता है आपको ये बात। कंप्यूटर ऑलवेज गिव द प्रिसाइज रिजल्ट, नियरेस्ट रिजल्ट, बिकॉज द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आइटरेशन बेस्ड, ठीक है। तो ये ठीक है, और नियर इतना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे मैनेजमेंट में हम 2 + 2 = 4 नहीं कहते, व्हाट वी आर सेइंग 2 + 2 = 5। ये क्यों होता है ये कभी समझेंगे आप इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। बात क्या है कि कंप्यूटेशन की इब्तिदा 1935 में हुई, और 1945 में फिजिक्स की दुनिया में एक
एक कंपोनेंट इजाद हुआ जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। और वो सेमीकंडक्टर की वजह से 1945 में पिन डायोड जो है ना वो बनाई गई पहली इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस। और 1967 में IBM वालों ने दुनिया की पहली मशीन लॉन्च कर दी, IBM 360 with ZDOS. That was the first desktop machine for users. काम हो रहा था, ठीक है, बड़ी सी मशीन छोटी करते 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 इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइज कम किया ना, बहुत पावर कम की है, साइज कम किया है। एक दौर ऐसा आएगा कि पावर की जरूरत ही नहीं होगी, ये टेक्नोलॉजी आ रही है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर, द विंड इज द पावर, ठीक है, वो भी आप कभी डिस्कस करेंगे। खैर, तो आपके पास क्या आ गया, मशीन डेस्कटॉप पे आ गया। अब आप ये देखिए कि 1967 में असल में लोगों के पास मशीन आई और लोगों ने काम करना शुरू किया। क्यों अडॉप्ट किया उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 1969 में इसाका फॉर्म हो गई, दैट इज अ बॉडी ऑफ सीसा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और कंट्रोल एसोसिएशन। एंड हाउ मेनी मेंबर्स 28,000 members from different countries. तो आप समझते हैं कि जिस जमाने में टेलीफोन भी नहीं था, टेलेक्स पे काम होता था अमेरिका में, ठीक है ना, ना मोबाइल फोन थे ना, ठीक है, 28,000 मेंबर यूं जमा हो गए होंगे। आप 500 नहीं कर सकते, जब प्रवेश पाकिस्तान का, ठीक है। आप क्या, आपसे मैं कहूँ यार कि आपको साल देता हूँ मैं, आप 1,000 मेंबर जमा करके दिखाएंगे। इवन टुडे यू हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, एवरीथिंग यू हैव, आप 1,000 मेंबर जमा कर सकते। 28,000 मेंबर 100 कंट्रीज से उन्होंने जमा किए, ऐसे नहीं जमा कर लिए भाई। इसका मतलब है कोई काम पीछे से 10-15 सालों से हो रहा था, 20 सालों से, ठीक है। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो टेक में काम कर रहे थे। ये खाली ऐसे वैसे लोग नहीं थे कि जमा कर लिए बस आ जाओ भाई बिरयानी मिलेगी, ठीक है। ये वो लोग थे जो टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उस जमाने में, और इनको पता था कि मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, जो कि जानते थे कि कम्युनिकेशन कैसे होगी, नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश होंगे, क्या होगा। और उन्होंने फिर इसके ऊपर अपने व्यूज दिए कि इन फ्यूचर हमें सिस्टम ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। कैन यू बिलीव इट, हाउ फार दे आर विजिलेंट, ठीक है ना। जिसकी बातें आज आप 2024 में ऑलमोस्ट सेंचुरीज कंपनी होने वाली है, ठीक है ना, हाफ ऑफ मोर देन सेंचुरी आगे चले गए, हम अभी समझ रहे हैं। एंड इवन तो पाकिस्तान में अभी तक लोगों को नहीं पता, लोग जानते ही नहीं है क्या है। तो दे हैव अ विजन एंड दे आर सो मच विजिलेंट अबाउट इट। ऐसे सिक्योरिटी में भी हम आएंगे तो बात करेंगे, रिसोर्स सिक्योरिटी में क्या है, क्यों नहीं आ रही क्वांटम कंप्यूटिंग, उस पर बात कर लेंगे। चलो ये सब है उसमें 28 वाले वर्जन में AI का। तो इसाका इस वक्त जो है ना वो ग्लोबल लीडर है IT गवर्नेंस के अंदर और कंट्रोल एश्योरेंस के अंदर, जो आपको स्टैंडर्ड दे रही है, वो बहुत कुछ दे रही है। जी जी हुसैन, अच्छा वालेकुम सलाम, उनका सर मेरे को सवाल करना। देन दे आर बेसिकली they are developed globally applicable information audit control standard। अच्छा ये बड़ी, जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब ये जी रिकॉर्डिंग इसकी होगी, आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग, आप फिक्र नहीं करेंगे। अच्छा देन बेसिकली क्या हुआ, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे हम अभी थोड़ा सा समझेंगे ऑडिट क्या है। ऑडिट की मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम थोड़ा समझ लें, सॉरी, कि इसाका के बाद हम ऑडिट की बात करेंगे। लेकिन ऑडिट की ना दो बड़ी टाइप्स हैं, ठीक है। वन वी कॉल इट इंटरनल ऑडिट एंड सेकेंड वी कॉल इट एक्सटर्नल ऑडिट।
ये समझ लीजिए आप इस बात को कि ऑडिट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू थर्ड पार्टी, एंड दिस ऑडिट एक्चुअली internal audit is a type, external audit a type. So whenever you are going to say the external audit, it means it always be a financial audit. And when you talk about the internal audit, so what type of audit you are going to conduct or engage, that is called that is going to fall into the internal audit. Now inventory audit, HR audit, warehouse audit, logistic audit, supply chain audits, IS audit, IT audit, network audits, XYZ audits, they all are going to in the category of internal audit. तो सीसा की जो प्रिपरेशन है वो एक इंटरनल ऑडिट की साइड में, ठीक है। अब दुनिया में दो बड़ी बॉडीज काम करना शुरू हो गई। एक तो थी इसाका, जिसने जाहिर बात है कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की सारी चीजें बताई, और एक थी एक का नाम है IIA, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। इसको भी मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया, और लास्ट जो 2019 में तक करिकुलम चेंज हुआ था, सब पूरा करिकुलम लिखा था मैंने, उससे पूरी दुनिया ने खरीदा है। इसकी एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। ये एक तरह की एक साल की प्रिपरेशन है। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैंने एक काम कर दिया है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इसको बता दूँ। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप ये है कि हम ये समझ लें कि दो बॉडीज जो थी इंटरनल ऑडिट की तरफ काम कर रही थी और USA से काम कर रही थी। IIA 200 साल पुरानी बॉडी, लॉन्च इन्होंने अपने आप को 1975 में किया, ठीक है, लेकिन 200 साल पुरानी बॉडी। इसाका जैसे 1969 की बॉडी है, वो तो थी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड, लेकिन उन्होंने पहला पेपर 1978 में लिया है सीसा का, ठीक है। तो IIA ने कभी IIA की जो CIA है उसकी कई सर्टिफिकेशन है, CIA द मोस्ट रिनाउंड सर्टिफिकेशन। तो CIA उसके 3 पेपर, पहले 4 पेपर होते थे, फिर उन्होंने एक खत्म करके 3 पेपर कर दिए। 2012 के बाद उन्होंने 3 पेपर कर दिए। 3 पेपर में से जो तीसरा पेपर है उसका 70% करिकुलम जो है वो IS ऑडिट है। अब ठीक है, अच्छा, जो मजे की बात ये कि जब हम कोई भी चीज करना शुरू करते हैं तो हमें कोई ना कोई बेसलाइन चाहिए होती है। हम कहते हैं यार कि हम किस चीज पर ऑडिट करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे ऑडिट, कोई स्टैंडर्ड चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, ठीक है। तो देयर वर नो गाइडलाइंस व्हेन आई स्टार्टेड। 2007 में IIA का प्रेसिडेंट और इसाका का प्रेसिडेंट आपस में बैठे और इन्होंने इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए। नंबर, जैसे यहाँ पे लोग जो हैं वो अकाउंट्स के बैकग्राउंड से, तो जो अकाउंट्स के बैकग्राउंड से लोग हैं उनको पता है कि IFRS के बाकायदा तौर पर स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑडिट अकाउंटिंग के अपने स्टैंडर्ड के नंबर से डिफाइन किया गया है मुख्तलिफ फीचर्स को, इससे पहले कुछ नहीं था। तो वो जनाब 2007 में उन्होंने बैठ के इसको फाइनलाइज किया। अब इंटरनल ऑडिट की तो और बहुत सारी चीजों में होता है, बहुत बड़ा डोमेन है, इतना बड़ा डोमेन है कि मैं शायद अगर जिंदगी में मैं खाली इंटरनल ऑडिट पे काम करता तो मैं हर चीज की ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक ऑडिट IS ऑडिट इसाका ने उसका डोमेन संभाला, और 2011 में पहली दफा जब रिवाइज वो आया है आपके पास मैनुअल, तो उसमें पहली दफा हमारे पास इंटरनल ऑडिट के या IS ऑडिट के स्टैंडर्ड सामने आए। इससे पहले देयर इज नो स्टैंडर्ड्स, आपको एक्सपीरियंस बेस्ड काम कर रहे होते थे आप। ये कैसे आप सीखना पड़ता था, लोगों के पास जाके बैठते थे कि ये कैसे होता है सर, ये कैसे आप निकाल लेते हैं, ये क्राइटेरिया कैसे बना लिया आपने, क्राइटेरिया क्या होता है सर, ये क्या मटेरियलिटी क्या चीज़ है सर, फला चीज़ क्या है। तो हमें ये सब चीज़ें सुनने को तो मिलती थी, गाइडलाइंस में थी, लेकिन वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट वी कैन डू एनीथिंग। तो ये हमें पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हुआ कि हमें 2011 के बाद स्टैंडर्ड हो गया।
बॉडी का जो मकसद है, जो बॉडीज है दुनिया में, उनका कुछ मकसद है ना। हम इस आगा की सर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, हम PMI की सर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग, कोई मकसद तो होगा ना पीछे उसकी। क्या मकसद है भाई, क्यों हम सर्टिफिकेशन करके हमें जॉब मिल जाती है, क्यों हमें वो ओब्लाइज करते हैं उस चीज़ के ऊपर। अब इसको भी समझ लें। देखिए जैसे इन्होंने 28,000 मेंबर जमा किए ना, तो ये वो ऐसे वैसे मेंबर तो नहीं थे, ये तो वो कंसल्टेंट उन्होंने जमा किए होंगे जिनका एक ह्यूज एक्सपीरियंस होगा। अब उनको जमा करके किया क्या, उनसे क्या पूछा, बस जमा कर लिया नहीं। उन्होंने कहा सर आप बताएं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म दिस वर्क। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, 28,000 लोग उसका जवाब देंगे। अब उस 28,000 लोगों के जवाब को मैं बाकायदा तौर पर क्लोज क्वेश्चनिंग में लेकर आऊंगा और मैं देखूंगा इसमें से 90% लोग बात ये कह रहे हैं, 10% लोग बात कुछ और कह रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी होता है, मगर जो 90% बात है ये पूरी दुनिया के लोग जो कह रहे हैं वो ऐसा हो सकता है। तो दिस इज द वाई बेस्ट वे होगा, एंड दैट बेस्ट वे एक्चुअली वी अडॉप्ट। हमने उसको उस प्रोसेस में रख दिया। डिफरेंट चीजों को एसोसिएट करके एक स्ट्रिंग बना ली और एंड टू एंड हमें ये पता चल गया कि अगर हमें ये काम करना है तो इस स्ट्रिंग के हिसाब से कर लो, ठीक है, तो वी कैन हैव अ गुड रिजल्ट्स। लाइक दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है। हो सकता है आपकी स्ट्रिंग यू हो, आप करें तो ऐसे काम करें, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ऊपर नीचे, कोई काम आप खुद करना चाहते हैं ना, तो आप ऊपर नीचे करते हैं उसको। जब आप ऊपर नीचे कर रहे होंगे तो आप अपनी एफर्ट भी लगा रहे हैं, एरर भी ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी अश्योरेंस भी नहीं है कि वो काम हो जाएगा। पता भी नहीं है मुझे। कभी खाना बनाया घर में, बनाया, क्या चीज़ बनाई है? बिरयानी बना ली, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। छोटा मोटा काम भी अगर आदमी कर ले ना तो आप कहते हैं यार वो बेगम भी अच्छा कर लेती है, भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमें आता नहीं है वो, हमें उसके बेस्ट प्रोसेसेस नहीं पता, ये बेस्ट वे नहीं पता। ऐसे ही हमारी जॉब है, ऐसे ही हमारा काम है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप उसको बेस्ट वे में करें ताकि कम एरर हो, कम खराजात हो, कम से कम टाइम लगे, कम से कम कॉस्ट लगे और आउटकम की एश्योरेंस हो। ऐसी एश्योरेंस कि मैं को यार रूह अफ़ज़ा बनाना है और एक अच्छे जायके वाला बनाना है, तो वो कहेगा भाई एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच ये मिलाओ, 1 चम्मच चीनी मिलाओ, 2 क्यूब मिलाओ, मिला लो, बेस्ट यही है, इतने मिलीमीटर ये लो, दैट यू आर मेजर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना, तो बेस्ट आउटपुट आ गई। तो जब आपका जो काम है ना वो उसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन ये जो काम, जब दूसरा काम जो आपको यहाँ पे बताया मैंने कि जब उसने कहा भाई ये काम ऐसे कर लो आप, लाइक इन दिस वे, तो आपके पास अब ये सारे जो आपने फजूल काम किए हुए ये सब आपने एफर्ट ज़ाया की हुई, इसमें कॉस्ट कम होगी, इसमें चीज़ें कम होगी और ये अश्योर्ड होगा। दैट इज वी कॉल इट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मैं क्लास में आप लैंडलाइन नंबर पे कर लें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? द कंसल्टेंट्स एंड द एक्सपर्ट्स पीपल who have been doing in their life and they know how to perform that work in the best manner. So they are suggesting you कि आप ऐसे कर लें। मैं कहूँ यार पता नहीं आदमी एक्सपर्ट है कि नहीं है, लेकिन once we are going to talk about the body, तो बॉडी आपको स्टैंडर्ड दे रही है, okay?
बॉडी इज सेइंग कि भाई आप ऐसे करें। अब जब बॉडी कह रही है आप ऐसे कर लें और आप ऐसा करते हैं और बहुत अच्छा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ही कह रही है भाई इसी बॉडी के सर्टिफाइड हो गए। That's why the CISA in demands. That's why any certification PMP or CIA or CMA or whatever the certification is offering by the different organizations over the world, ठीक है, different bodies, तो वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर लाना चाहते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि आप गलत कर रहे हैं। इंजीनियरिंग होता है ना, इंजीनियरिंग में पढ़ना होते हैं तो इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स अपने, ठीक है ना। तो हम जब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स में जब इंजीनियरिंग वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल वर्क कर रहे होते हैं, तो वो हमें कहता है यार BS 9967 लगा लो। अब अगर उसको पता ही नहीं है BS 9761 क्या होता है, तो वो पूछता रहेगा यार ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, बिकॉज ही इज नॉट अ सर्टिफाइड इंजीनियर। So he is not certified engineer, he is not fit in the organization. वो हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है, ठीक है। ये एक फिलॉसफी है पूरी, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी है, ठीक है। ऐसे नहीं आप सर्टिफिकेशन करने पहुंच गए। सो एज फार एज कंसर्न the information system audit control standards, तो वो हमें इसाका ने दिए, and now they are going to offer you a very respected certification CISA। तो मैंने कहा 1978 के अंदर पहली दफ़ा ऑफर हुई। इस वक्त पहले वो फिजिकल पेपर लेते थे, तब भी पूरी दुनिया में 200 लोकेशंस पर एक साथ पेपर है, 4 आवर्स का पेपर है, 200 क्वेश्चंस है, आज भी वही है। 75% पासिंग मार्क्स है, आज भी वही है। लेकिन अब पॉइंट सिस्टम है कि 75 या तो कर लो या 850 पॉइंट में से 450 पॉइंट ले लो, तो वो 50% बनते हैं। लेकिन वो कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं बन जाते, ठीक है। वो 50% नहीं है, उसका कुछ और वेटेज है। तो वो क्या वेटेज है, क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे एग्जाम में, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसको समझना भी है कि IAS ऑडिट होता क्या है, कैसे होगा, और हमें ये भी समझना है कि पेपर कैसे क्लियर होगा। दोनों चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो एक बात ये होगी कि CISA एक वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन। आप दुनिया में कहीं चले जाएंगे, यानी मैंने जब CISA किया और मैं 99 में ही मैं इंग्लैंड गया पहली दफ़ा ज़िंदगी में, तो जब मैं वहाँ पहुँचा और उसने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया हुआ है, तो मैंने उसको बताया कि मैंने ये किया हुआ है। तो एक मैं उसको बताया कि CISA किया, वो सीट से खड़ा हो गया पूरा। What? You have done CISA? Yes sir. My God, how you have done it? उस वहाँ पे कुछ था ही नहीं CISA। उसने बकाया फौरन कांटेक्ट किया वहाँ पे KPMG से, SGS से। अच्छा, मैं SGS के साथ एसोसिएटेड था, SGS के साथ मैं ऑलरेडी यहाँ पर भी था और इंग्लैंड में जाके पहला काम मैं नहीं किया, मैं SGS के पास पहुँच गया। मैंने कहा भाई फ्री आंसर जो भी ऑडिट है मैं बताया, उनको तो लोग चाहिए थे, उस ज़माने में तो लोग ही नहीं। तो इतनी रिस्पेक्टेबल सर्टिफिकेशन है, तो मुझे तो भाई इससे बड़ा हमेशा बेनिफिट रहा और आगे भी है। ओवरव्यू ऑफ CISA प्रोग्राम एंड एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दैट डेजिग्नेशन इज हाईली रिप्यूटेबल। 1975-8 में पहली दफ़ा ऑफर हुई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब ये तो मैंने खाली स्टैट्स लिखी हुई है। ओके, व्हाई बिकम अ CISA, क्यों आप करना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये कि इट्स डिमॉन्स्ट्रेट योर विलिंगनेस टू इम्प्रूव योर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। एक तो होता है ऑडिट चेकलिस्ट पे होता है, आमतौर पर ऑडिट चेकलिस्ट पर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो ऑडिट है ये खाली ऑडिट नहीं है, ये गैप एनालिसिस है। गैप एनालिसिस और ऑडिट में फर्क है, ठीक है। तो वो हमें जब तक टेक्निकली नहीं पता होगा क्या हो रहा है, हम पकड़ नहीं सकते उसको। और टेक्निकली में हमें सिस्टम्स का भी पता हो, टेक्निकली में हमें उसकी फंक्शनैलिटी का भी पता, उसके प्रोसेसेस का भी पता हो, ठीक है। कि मैं ये कैसे कह दूं कि यार ये सिक्योर है, मैं ये कैसे कह दूं कि आपने बाकायदा वो चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं जो कि होनी चाहिए। तो देयर आर सम कोई चीज़ टेक्निकली आपको पता होंगी तो तो इसमें एक आपकी लर्निंग टेक्निकली बहुत होगी, खासतौर पर वो लोग जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, ठीक है। उनका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो उनको मुझे पता है कि वो लोग
जो है वो उनका बैग बेचारा कितनी कोशिश कर लें उसमें वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहता है, तो यहाँ आपको वो हो सकता है वो गैप फिल हो जाए। नॉलेजफुल है ये पूरा चीज़। सेकेंड, दैट डिमॉन्स्ट्रेट टू मैनेजमेंट योर कमिटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंस। हर सर्टिफिकेशन आपको कुछ सिखाती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है, एंड दैट इज वी कॉल इट द कल्चर। कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी या छोटी नहीं होती, आप ऑर्गेनाइजेशन को उसके कल्चर से उसको बड़ा बनाते हैं। आप आपके पास लोग बोलिए आप पढ़ो, जाओ सर्टिफिकेट लेकर आओ, फला चीज करके आओ। क्यों? क्योंकि आप एक लर्नेड कल्चर जब बनाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करेगी, और यही इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप एक्सेल करें। सीसा करने के बाद आप एक्सेल करते हैं, देन द एम्प्लॉयर इज सीकिंग यू, चाहे वो ऑडिट कंपनी हो, चाहे वो कोई इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है या कोई फर्म हो, दे हैव रिक्वायर्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। साल में एक दफा एनी हाउ एक इंटरनल ऑडिट अब लाजमी है फॉर कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस की लाजमी शर्त है, ISO की तो है ही लाजमी शर्त, जो इंटरनेशनल जितनी भी इस वक्त दुनिया में कंपनी काम कर रही हैं उनके लिए भी लाजमी हो गया कि इंटरनल ऑडिट हर सूरत में उनको कराना। Enhance your professional image and obviously you have gain a worldwide recognition. अच्छा, अब एग्जाम कैसे बनता है इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले जो थे ना, जब स्टार्टिंग में 1999 में ये 7 डोमेन्स थे, ठीक है। उसके बाद ये 6 हुए, ये हुए 2007 में, ठीक है, और 2011 में सॉरी, और अब 2024 में ये 5 डोमेन हो गए ये, लेकिन उससे ज्यादा कंटेंट है। ये डोमेन कम हो गए, कंटेंट ज्यादा है। हाँ, तो ये उसका सारा डिटेल है कि 14% क्वेश्चन आपके IAS ऑडिट प्रोसेस से आएंगे, जो कि मैं बताऊंगा कैसे आएंगे, और ये 14% जो है वो ज़्यादा पता है कि 28 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। ये आपके ये थोड़ा गलत दिखा लग रहा है, 11% है ये 11% है, ये 14% है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT, और इसके बाद ये आपका जो है 19% जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन है, और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन मेंटेन 23% है, और इसके बाद जो आपका है वो 32% है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स है, जो कि अच्छा खासा है। जैसे मैंने आपको बताया था 200 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है, इट्स नॉट ईजी। कि आप कहेंगे मल्टीपल चॉइस है तो मैं आराम से बैठे करके आ जाऊँगा, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, सब चीज़ें, कोई तुक्का नहीं है। पहले जब हमारा पेपर होता था तो जो फिजिकल पेपर भी होता था वो हम जब बैठे होते थे तो हमारे इर्द गिर्द 9 लोग बैठते हैं। अगर मैं बीच में हूँ ना तो एक आगे 3 पीछे 2 इधर, और मैं खुद तीसरा ना हूँ, तो सबके पास डिफरेंट पेपर होता है, ठीक है, और कोई बात नहीं कर सकते थे। और एक शीट होती थी खाली, उस शीट में 200 नंबर OMR शीट होती थी उस ज़माने में, और 4H की पेंसिल आपको अलाउ थी बस, ना घड़ी, मोबाइल फ़ोन तो होते ही नहीं थे। मेरे पास खैर फिर भी था क्योंकि मैं इंस्टा में जाता था तो वहाँ से मिला हुआ था, वो भी जमा कराओ सब। मैं जो कमरा लेके वहीं रुक गया था रात में होटल में, और सुबह जाके मैंने पेपर दिया। 8 बजे वो दरवाज़ा बंद हो जाता, 9 बजे से पेपर शुरू होता था। यू हैव आपको वॉशरूम में जाने तक की अलाउ नहीं होता इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा हो, अदरवाइज टाइम ही नहीं इतना होता कि आप अगर ये सब चीज़ों में लग जाएंगे तो आप पेपर पूरा कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू हैव ओनली 80 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। अगर आप 5 मिनट जाकर होकर आए तो इसका मतलब है कि आप रह गए, ठीक है ना। तो आपने ये तमाम चीज़ों को बड़ा सोच के करना है। फिजिकली प्रिपेयर का मतलब क्या है? आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें और अपने जिस्म को प्रिपेयर करें। पहले तो ये भूल जाएंगे ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। यू कैन पास दी एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने MS किया ना तो जो सबसे टफेस्ट पेपर था उसके बाद क्रिकेट खेल ले रहे हैं, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, जो बॉलिंग करा रहा था वो सिल्वर मेडलिस्ट था, बाकी सब आधी क्लास फेल हो गई।
बिलीव मी 50 में से 25 लड़के फेल हुए, ठीक है ना, उसी पेपर में, और फाइनल ईयर का पेपर। तो हम अपने आप को दिमागी तौर पर थकाएंगे, एक दिन पहले बंद कर दें सब, नहीं कुछ नहीं करना है, बस सर पे सवार नहीं करें, इंजॉय करें आप कि कैसे हो, हाउ यू कैन डू इट। ये सारे पेपर ऐसी बात होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली, वो मैं आपको समझाऊंगा, एक दिन आप मुझे याद दिलाएंगे कि सर क्वेश्चन होता कैसे, पेपर बनता कैसे, और हम इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो जब हमारे 2 डोमेन पूरे हो जाएंगे तब ये बात आपको समझ में आना शुरू होगी। तो 2 डोमेन के बाद ही मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है। कोई चीज आपसे कॉन्टेक्चुअली नहीं पूछी जा रही, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, अगर आईएएस ऑडिट का पेपर, आईएएस ऑडिट से अगर उनको 11% सवाल बनाने हैं पहले डोमेन से, तो वो आपसे ये पूछेंगे नहीं कि बताओ क्राइटेरिया का नंबर क्या होता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ऑडिट का ना तो कोई स्टैंडर्ड पूछा जाएगा, ना उसकी कोई गाइडलाइन पूछी जाएगी, बल्कि अगले 4 डोमेन का ऑडिट किया जाएगा, इसलिए 11% उससे आएंगे। बात समझ आ रही है? जो अगले 4 डोमेन हमें देखें तो आईएएस ऑडिट का जो चैप्टर है उससे एक भी सवाल नहीं आएगा, आगे वाले पर अप्लाई होंगे कि इसका ऑडिट कैसे होगा, समझे आप? तो इसीलिए कोई भी सवाल कॉन्टेक्चुअली नहीं है, हर सवाल कॉन्सेप्चुअली है, हर सवाल के ऑप्शंस है, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है कि आप कहें यार उसका बी लगा दूं उसका सी लगा देता हूँ, ठीक है। डोंट पैनिक, लोग खड़े होते थे एक जमाने में, कुछ लोग खड़े हो गए तभी और करने लगे ये आउट ऑफ रीच है, फलाना है, उन्हें बाहर निकाल दो, ठीक है। So if you not sure, go to the next question. Take your time, but obviously I said that you have only 80 seconds, so you have to finish within your time. मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप करेंगे। 4 सवाल है, 4 सवाल का 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सारे ऐसे लगेगा एक जैसे। It's very ambiguous. What is the most correct answer? That based on your experience and your learning and your knowledge. ठीक है? कोई बात नहीं, फेल हो गए कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम पास होंगे आप। यू हैव अ टाइम। जिंदगी में हर वक्त ये जरूरी कि आप पास हो जाए, फेल भी होते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट पास नहीं हो गए थे, 95% रिजल्ट मेरा दिया, उसमें से 5 फेल भी हुए। वो फेल किस तरह हुए? कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, कुछ जिन्होंने कहा हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, सर हमारे तो कोई मसला ही नहीं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने वो निकाल लिया, ये क्या मसला है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी हमारी ओवर थिंकिंग भी होती है, और कुछ लोग होते हैं वो अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उस वक्त ही फेल हो गए, एग्जाम में बैठे नहीं, कभी उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया ही नहीं, ठीक है। तो उससे आपको प्रैक्टिस से गुजारवाऊंगा मैं कम से कम 3000 सवाल से, ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो आपने करने। हर आदमी के पास आईटी में आज भी, एक दौर में हम जब 88 से मैं आईटी में काम करता, उस वक्त आईटी का नाम भी नहीं था, कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर से जिंदगी शुरू की थी मैंने अपनी, नेटवर्किंग में आया नोबेल नेटवर्क के अंदर में 91 में, आई वॉज इन इंटर, और मैंने CNC सर्टिफिकेशन कर ली थी, किताबों से कुछ नहीं था हमारे पास। फाइनली करते करते हमने हर चीज़ पे काम किया, डेटाबेसेस पे भी, प्रोग्रामिंग पे भी, ग्राफिक्स पे भी, हर चीज़ पे काम किया। AI में PhD कर ली, दूसरी साइबर सिक्योरिटी में PhD कर ली, लेकिन काम हम एक ही डोमेन में कर पाते हैं। अब हमसे ये नहीं हो सकता कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, नॉट नेसेसरी, कर ही सकते हैं। तो हमारे कुछ वीकर एरियाज हैं, हर आदमी की एक ना लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में वो मुख्तलिफ जगहों पे जब पोजीशन हो जाता है तो उसको ये सोचना होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जाके इस पोजीशन में पहुंचूं। जैसे ILM का एक कोर्स था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, वो टॉप मैनेजमेंट के लिए था। उस कोर्स की फीस पता है को क्या थी? 80,000 पाउंड्स। 80,000 पाउंड्स, 1 महीने का कोर्स लगातार सुबह से लेकर शाम तक मेरी कंपनी ने मुझे कराया था। आई वॉज इन टॉप मैनेजमेंट। ये PMP CMP सब हमने उसी में किया, लूसी ग्रे ने पढ़ाया, ठीक है ना। टॉम पीटर उसके अंदर आके लेक्चर देता, लीडरशिप का कोर्स था, ऐसा कोर्स था कि
हम हिल गए यार क्या क्या करा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। तो हमारा एक साइकिल था, उन्होंने हमें करा दिया। अब वो कोर्स की सर्टिफिकेशन दिखाना है मुझे, आई कैन गेट अ जॉब। मैंने यार इस आदमी को यहाँ लिया। तो हर जगह हर टाइम पर एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब मेरे लिए सीसा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मैं सीसा कर भी लूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तो किया हुआ है, लेकिन एक बात आ रहा हूँ, मैं अगर इस स्टेज पे जाके मैं कहूँ यार मैं सीसा करना, तो मैं अपनी उस लाइफ का स्पैन गुजार चुका हूँ। अब मुझे ये देखना है कि मुझे करना क्या है। तो सीसा करने के लिए या तो मैं जीआरसी की तरफ जाऊँ, मैं बता रहा हूँ अपने जैसे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यू आर यंग, आप अपने टाइम का अभी एग्जीक्यूशन पीरियड गुजार रहे हैं, तो आपको उस तरफ जाना है। लेकिन हर आदमी का वीकर एरिया है, जैसे मेरा है ऐसे आपका होगा। अब इस एग्जाम को पास करने के लिए भी आपके वीकर एरिया होंगे, यू हैव टू असिस्ट योर वीकेस्ट एरिया। इसमें नेटवर्क भी होगा, इसमें डेटाबेस भी होगी, इसके अंदर सब कुछ होगा। हो सकता है आप किसी चीज में स्ट्रांग हो, किसी में ना। और जो कॉमर्स वाले हो सब में वीकर होंगे। तो मैं जितना पढ़ा सकता हूँ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको भी ये देखना है कि आपको क्या चीज अपनी कंप्लीट करनी है। इस एरिया के अंदर मेरे पास कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, तो वैसे तो मैं बहुत खोल खोल के पढ़ाता हूँ। लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं सर आप इतना खोल के मत पढ़ा देते हैं हमें, कि हमें तकलीफ होनी शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा जब जाओगे ना तो पता चलेगा क्या हो रहा है, जब क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा क्या हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन तो डीप लेवल पे आएगा। तो आपको रेफरेंस मटेरियल इसाका का भी चाहिए, मैं भी दूंगा। मेरे पास भी सारा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री मिल जाएगा भाई, ठीक है। वो जो मैनुअल है 2500 मुझे आधे दे, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा। और भी मटेरियल है मेरे पास, बहुत कुछ है, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी करना है। अब हम क्या करें, हम माशाल्लाह से हम लोग तब मिला जुला के तकरीबन कितने लोग हैं, अभी तक तो है 1 2 3 और 4 5 6 लोग हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, किस तरह से करता हूँ। फॉर सपोज हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए और हमें कहा गया कि आप इसका आईएएस ऑडिट कर दें। पता चला जनाब कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ है ही नहीं जिसका आईएएस ऑडिट करना। ऑडिट करने के लिए अभी आज बताऊंगा आपको मैं कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब कुछ है ही नहीं, तो हम कहेंगे भाई आप कुछ ये तो बनवाइए, ये चीज़ें तो रेडी करिए आप अपने पास, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए आप। जब आप फॉलो करेंगे तभी हम आके कुछ आपको ऑडिट करेंगे। ऑडिट का मतलब है इंप्रूवमेंट। तो क्या इंप्रूव करें, कोई बेसलाइन होगी तो उससे ऊपर नीचे दिखाएंगे ना कि भाई ये इस पर पहुंच गया और इससे ऊपर जाओ। आपने कोई डिफाइन ही नहीं किया वो, तो मैं कहां से कंपेयर करूं। सो फॉर द कंपैरिजन यू नीड अ बेसलाइन। आपके पास बेसलाइन नहीं है, तो अब आप कह रहे मैं ऑडिट तो नहीं कर रहा आपका, मुझे ऐसा कंसल्टेंट हायर कर लिया, आई एम गोइंग टू डेवलप योर सिस्टम्स, ठीक है। फिर मैं आपको ऑडिट नहीं करूंगा, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करता है फिर उसको ऑडिट नहीं कर सकता। तो आप सब जो है समझ लें कंसल्टेंट है, ओके। और आपको जो कुछ मैं पढ़ाता जाऊंगा उसके आप सिस्टम बनाते जाएंगे। जब आप ये सिस्टम बना लेंगे, रिपोर्ट बनानी है, लिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ रेडी कर लेंगे तो हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। आप उसको ऑडिट करेंगे, वो आप उसको ऑडिट करेगा। तो 6 लोग हैं तो 3 ऑडिटर इधर 3 ऑडिटर उधर। अब उस ऑडिट में आपने रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। अब आपने उस पर रिपोर्ट लिखनी है, तो सारी चीजें खुद ब खुद प्रैक्टिकली हो जाएंगी, राइट जनाब। तो ये हमारे पास होगा जनाब तरीकेकार। और एट अ टाइम उस जमाने में 200 लोकेशन पे वो पेपर लेते थे और 12 लैंग्वेज में पेपर बनता है आज भी, ठीक है। अब फीस बहुत ज्यादा हो गई है। फाइनली ये कि आपको इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपका 5 साल का आईएएस का या सिक्योरिटी का या 10 साल का आईटी का एक्सपीरियंस होगा, तब आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। लेकिन ये कंपनसेट हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों से। पहली चीज़ तो ये कि
अगर आपकी एसोसिएट 2 साल की डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 4 साल की डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और फिर हर साल का एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में, चाहे वो आप कॉलेज में प्रोफेसर हो, चाहे आप डेटा से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, फाइनेंस में हो, आप स्टैटिस्टिक्स में हो, आप कंप्यूटर में हो, आप XYZ फील्ड के अंदर है, तो हर उस 1 साल का एक्सपीरियंस 1 साल से कंपनसेट हो जाएगा। इन केस अगर किसी का कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तो पेपर वो दे सकता है, पेपर आप घर बैठ के भी दे सकते हैं, पेपर आप दे सकते हैं, और पेपर जो है पास करने के बाद आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। फिर आप अपने क्रेडेंशियल जमा करा देंगे कि मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया हूँ, ठीक है, तो आप सर्टिफाइड। तो ये इसका वे है। और रिक्वायरमेंट ये है कि इसाका के कुछ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो कि IIA के भी हैं, कि आपने जब ऑडिट करते हैं ना, तो हम कहते हैं ऑडिटर का दिल एक कब्र होना चाहिए, इट शुड बी अ ग्रेव यार्ड। जो कुछ गया वापस से निकले। कोई पूछे आपसे यार कि फला कंपनी को ऑडिट किया था, बताओ उसे क्या हो रहा है, डोंट डिस्कस टू एनीवन। ऑडिटर इसीलिए वो खामोश बैठते हैं, ऑडिटर की गैदरिंग कम होती है ताकि वो किसी के साथ डिस्कस ना कर पाए, बिकॉज द प्राइवेसी as far as the confidentiality of the and the data of the organizations, there are legal and ethical duties of the auditors that they are not going to be exposed. Whenever any legal requirement is required, when any law enforcement agency is going to be called you to show the data, and that data already has to be given by the permission of the client. Further, आपको अपनी कॉम्पिटेंसी रखनी है, ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। फर्दर आपके पास जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं आप उस फैक्ट को छुपाएं नहीं, उसको शेयर करें। ऑडिटर कोई हत्तल इनका आखिरी चीज नहीं होती। ऑडिटर का काम ये है कि वो ये फैक्ट्स बताएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की गैप सामने आएंगे, और उस गैप पर फिर आप जो है वो कोई ना कोई जो है आप उसको बता सकेंगे कि आपने क्या इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट एक तो लिंक पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नमाज का टाइम हो रहा है, 15 मिनट के बाद हम फिर रिकनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ठीक है एवरीबॉडी, लिंक 2 आपके पास आ रहा होगा, उस लिंक 2 पे आप ज्वाइन करेंगे। फिलहाल हम 15 मजीद कुछ चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप आते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हर ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर 3 किस्म के लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक उसकी होती है टॉप मैनेजमेंट, एक उसकी होती है मिडिल मैनेजमेंट, और एक होती है उसकी लोअर मैनेजमेंट। अब इसके काम क्या है? टॉप मैनेजमेंट का काम यह है कि वो स्ट्रेटजी डिफाइन करे। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। स्ट्रेटजी का मतलब है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि हमें करना क्या है। टॉप मैनेजमेंट का रोल है, व्हाट्स नीड टू बी डन, ठीक है, क्या करना है और किधर जाना है। आज हम ये करा रहे हैं, आज हम इस प्रोडक्ट को बंद कर दें, इस प्रोडक्ट को चलाएं, एक नई चीज लाएं, इनोवेशन करें, ये करें फला। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक डायरेक्शन सेट करती है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट वो जगह होती है
जहां पर उस डायरेक्शन को प्लानिंग में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कि ये जो डायरेक्शन आई है अब ये होगी कैसे। ठीक है, तो देयर आर सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व, देयर आर सम मटेरियल इन्वॉल्व, देयर आर सम ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व, देयर आर सम अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व हो के मैं कहूँगा जब यार ऐसे गुजरेंगे तो हो जाएगा ही। और फाइनली जो लोअर मैनेजमेंट होती है उससे आप कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करे, उससे काम कराते हैं आप। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन अगर ये काम कर रही है तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर दे रही होती है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो समझती है कि जो मैंने कह दिया उसका हमें काम परसेंटेज के तौर पर मिलेगा। एक एक्सपेक्टेशन होती है उसकी कि यार ये काम हम करने जाएंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। मिसाल के तौर पर मुझे कहा उसने कि यार आप ये 2 करोड़ रुपए लगा लें, ये 2 करोड़ आप लगाएंगे ना तो आपको 30 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे आखिर में। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो आमतौर पर जो बिजनेस के लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे काम करते हैं वो एक तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है, कोई बात कह रहा है तो ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है बड़ी अच्छी बात है। अब उससे पूछेंगे बजट बताओ, तो वो कहेगा सर इतना बजट है, ये मैंने बजट बनाया है। कौन कह रहा है? मिडिल मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को प्रपोज कर रही है, और ऐसा बहुत होता है। ठीक है, बजट बना, अब उस बजट को लग गया, अल्टीमेटली हमें कैसे पता लगेगा लग गया? तो कैसे पता लगेगा बताता हूं मैं। काम तो हो रहा है, नजर भी आ रहा है, हम ऑफिस में जा रहे हैं आ रहे हैं, कपड़ा छपड़ा लगी हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो जो उसने मुझे बजट बना के जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बताया है वो कोई परसेंटेज होगी। तो मैं कहूंगा अच्छा यार तुम कितना अचीव कर लोगे? तो कहेगा मैं इतना अचीव कर लूंगा, एक टारगेट है मेरा। उस टारगेट का मुझे पता है कि अगर मुझे ये कह रहा है ना कि 30 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं अपने ध्यान में रखूंगा कि मुझे 23 लाख रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि मेरे लिए और ये बहुत जबरदस्त होगा। मतलब ये अगर कोई कंपनी 70% आउटपुट दे रही है तो मेरा प्रॉफिट 23 लाख होगा 2 करोड़ में से। मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब ये 30% का जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है ना भाई, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूं कि जो है वो 30 लाख रुपए लगा 2 करोड़ लगाऊंगा तो 30 लाख रुपए आ जाएंगे साल के आखिर में। हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सोचती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई वर्टिकल खोल रही है, कोई XYZ कर रही है, तो वो कोई नई चीज डिजाइन करती है। तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, किसी की 40% आउटपुट है, किसी की 70%, 50%। हर आदमी चाहता है उस आउटपुट को इंक्रीज कर ले, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन तो की हुई है ना किसी ने। लेकिन मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं उम्मीद है कि आप लोग जो है ये काम कर रहे हैं। जो आपने कहा था कि आप ये काम कर रहे हैं, आप उस टाइम पर वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर एक कमेटी फॉर्म करूंगा। ठीक है, दैट वी कॉल इट मैनेजमेंट कमेटी। इसको बॉडी बोलेंगे स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर है, बीओडी से ऊपर। ठीक है, अब मैनेजमेंट कमेटी और मैनेजमेंट बोर्ड अभी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, सुन ले, सब क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है ना, वो असल में चल रही है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू। आप उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें, डिपेंड करेगा। जो सही बिजनेस में, जो पब्लिक लिमिटेड बिजनेस में,
प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस, उनकी बात हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इन्फॉर्म करेगी मैनेजमेंट कमेटी के भाई असल में हमारे पास ये हो रहा है, ये आउटपुट है, क्योंकि पैसा सब मिला के लगा रहे हैं, ठीक है। इनकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये पैसा मिला के लगा रहे हैं, ये शेयर होल्डर कंपनी है, ये मार्केट से भी पैसा उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है तो कौन बताएगा कि सही हो रहा है काम? तो मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे पास ये काम सही हो रहा है? तो मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, एक प्रोसेस खड़ा करेगी, इंटरनल किसका ऑडिट, ठीक है। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनल ऑडिट का सिस्टम वो खड़ा करेगी कि ये कैसे मैं इनसे अश्योरेंस लूँ, इनसे पूछेगी भाई तुमने जो कुछ किया, यहाँ जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए CEO है या कोई MD है, ठीक है, वो रिपोर्ट कर रहा है मैनेजमेंट कमेटी को कि हमारी इतनी आउटपुट है, हम ये कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो एक और काम करेंगे, और वो एक और कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑडिट कमेटी। अच्छा, अब होता क्या है, ये ऑडिट कमेटी में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर से लोग होते हैं, और मैनेजमेंट कमेटी में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर से कुछ लोग होते हैं। यहां पर फर्क क्या है कि इधर MD भी होता है, यहां से MD भी होता है, या CEO होता है, जो भी होता है, ठीक है। यहां से 2 लोग उठा लिए, एक यहां से उठा लिए, 4 लोग बाहर से ले लिए। ऐसे ही ऑडिट कमेटी में भी जो है वो ऊपर से 2 लोग आ गए। अब यहाँ पे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो उसका मेंबर होगा, ठीक है। आमतौर पर उसको हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कहा जाता है, या उसको CIO कहा जाता है, CIA सॉरी, चीफ इंटरनल ऑडिट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है उसको, और 2-4 मेंबर बाहर से भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर एक और बोर्ड एक एरिया फॉर्म करते हैं जिसमें हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको, और सीनियर ऑडिटर्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, एंड जूनियर ऑडिटर्स, ठीक है, और इंटरनीज जो चाहते हैं आप, उसके मिला के ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक ऑडिट क्रिएट करते हैं। अब इस ऑडिट को बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट कमेटी जो है ये बाकायदा तौर पर एक ऑडिट चार्टर अप्रूव कराती है। ऑडिट चार्टर इज वन ऑफ दी सीसा की भी रिक्वायरमेंट में से है। ऑडिट चार्टर आपका बनना चाहिए, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है 4 पेज का, जिसमें ये लिखा जाता है कि हम कौन कौन से ऑडिट करेंगे, कब ऑडिट शुरू करेंगे, तो ऑडिट का इंगेजमेंट प्लान, कितने नंबर ऑफ ऑडिटर्स हमारे पास से जाएंगे, रिसोर्सेज सारी, कितना हमारा टाइम लगेगा, कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी, वो सब कुछ हम ब्रीफ करके बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूवल लेंगे, क्योंकि हमें पैसे चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद ऑडिट इंगेजमेंट प्लान, ऑडिट कंडक्शन प्लान डीपली डिफाइन होगा, ठीक है, और डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं उसके साथ एसोसिएट होगा। अब ये जो ऑडिटर्स हैं ये क्या करेंगे कि ये बाकायदा तौर पर यहाँ पे ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है। जाने से पहले ये इनको इन्फॉर्म करेंगे 15 दिन पहले
कि हम फला एरिया को ऑडिट करने आ रहे हैं, चाहे वो IS ऑडिट हो, हम फला डेटा को जानना चाहते हैं, हमें ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमें या तो दिया जाए या हमें एक्सेस दिया जाए कि हम देख सकें, तो हम देख सकते हैं उसको, ठीक है, हमारे पास। लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन की MD से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, आप नहीं देख सकते। तो ये सब इंटरनल ऑडिट है। सब इंटरनल ऑडिट, सब इंटरनल ऑडिट वाले ही सारे लोग हैं ये, जो यहाँ जाएंगे और जाके डेटा लेके वापस आएंगे, ठीक है। अब एक ऑडिट कमेटी के पास डेटा आ गया, एक मैनेजमेंट कमेटी कह रही है कि यार हमारे पास डेटा मौजूद है, यानी हमारी परफॉर्मेंस, ऑडिट कमेटी बता रही है कि इनकी परफॉर्मेंस ये नहीं है, ये गैप्स है, ये इश्यूज है, और ये गैप इश्यूज है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जाने से पहले एक और क्लॉज है, जैसे एक क्लॉज क्या हो गया ऑडिट चार्टर, एक क्लॉज क्या हो गया इंटरनल ऑडिट, एक क्लॉज है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट रिव्यू, ठीक है। ये मैंडेटरी क्लॉज है सारे, ये जितने क्लॉज है ना, इसके बगैर ऑडिट माना नहीं जाएगा। इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी क्लॉज, डॉक्यूमेंटेशन नंबर 1 मैंडेटरी क्लॉज, नंबर 2 ऑडिट चार्टर मैंडेटरी क्लॉज, नंबर 3 इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी क्लॉज, नंबर 4 मैनेजमेंट रिव्यू मैंडेटरी क्लॉज। तो ये मैंडेटरी क्लॉज ये है कि जब तक ये हो नहीं गया बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास सही रिपोर्ट नहीं पहुंची। अब जब ये क्या होता है कि ये अपनी रिपोर्ट और ये लोग लेके साथ बैठते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं हाँ यार ये ऑडिटर ने सही निकाला, तुम जो बात कह रहे हो ठीक है, लेकिन तुम जो बात देखो ये कितने गैप्स हैं। 1920 समझ में आता है, 1820 समझ में आता है, लेकिन अगर 1020 है कहीं पे तो वो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए। यानी ऑडिटर कह रहा है भाई कुछ हो ही नहीं रहा, बेड़ा गर्क हो, वो कह रहे हैं यार हम कैसे परफॉर्मेंस दे रहे फिर, अगर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है, वहां इसलिए लोग जो ऑडिटर से डरते हैं कि ये आके हमारे पास हम, अच्छा हमारे यहाँ का ये रिवाज है, हालांकि चाहे इसाका हो चाहे IAA हो, वो कहते हैं यू डोंट बी शो योरसेल्फ एंड पोज योरसेल्फ एज अ पुलिस ऑफिसर, यू आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एनी रेड, ठीक है, आपको रेड करने नहीं जा रहे वहां पे, रंगे हाथों पकड़ लो उसको। मगर क्योंकि कुछ वाकयात फ्रॉड के हुए हैं, पहले फ्रॉड ऑडिट में नहीं आता था, लेकिन वाकयात फ्रॉड के हुए हैं, तो इस वजह से ऑडिटर फैल गया कि मैं तो फ्रॉड पकड़ लिया। और जो स्टेक होल्डर है जिसने पैसा लगाया वो कहते भेज नहीं आते, तो मेरे पैसे बचा लिए, समझ आया बात को। तो इस वजह से हमारा एटीट्यूड डिफरेंट हो गया, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये नहीं है, हमें इसलिए हायर नहीं किया गया, हमें हायर किया गया है कि हम एक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के साथ रिपोर्ट बनाएं जिसमें कंप्लायंसेस का पूरा पता लगे, ये कंप्लायंसेस कैसे होंगी, और इस कंप्लायंसेस की बेसिस पे हम ये एनालिसिस करके दें कि ये गैप्स अगर कवर हो जाते हैं तो वो जो आप कह रहे हैं 30% का लॉस, तो अगर ये कर लें तो आप 25% पे आ जाएंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ ऑडिट, इंप्रूवमेंट होगी, वैल्यू एडिशन होगी, कोई चीज हो सकता है ट्रेनिंग से बेहतर हो जाए, कोई चीज प्रोसेस से बेहतर हो जाए, कोई कंट्रोल से बेहतर हो जाए। अब समझिए बात को। अब क्योंकि ये सारा काम पहले भी हो रहा था, ये सारा काम पहले भी होता है, ये समझ में आ गया पूरा सिस्टम, ये ऑडिट का मेन पर्पस है। तो ये काम पहले भी हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि हर चीज ऑर्गेनाइजेशन का हर प्रोसेस थ्रू IT हो रहा है। अभी आप एक और आप लोगों ने सुना होगा, या तो इन फ्यूचर आपको करना भी पड़ेगा, ये कहलाता है सर्विस मैनेजमेंट, IT सर्विस मैनेजमेंट। इसका कोर्स में कमिंग ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 दिन का कोर्स है क्वेश्चन भी आते हैं जी, क्वेश्चंस भी हैं शायद। क्या है जनाब, सर्विस मैनेजमेंट ISO 20000 या ITIL का जो कोर्स है,
ये आपको सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट क्या है? वो कहते हैं जी हर चीज एक सर्विस है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ हो रहा है वो एक सर्विस है। एक एम्प्लॉय कर रहा है कुछ काम तो वो सर्विस है, कोई प्रोडक्ट बन रही है तो वो सर्विस है। हर चीज एक वैल्यू डिलीवर कर रही है, समझ रहे हैं आप? ऑडिट हो रहा है तो एक सर्विस है। इस सर्विस की वैल्यू क्या है? इवन कि अगर डेटाबेस की मॉनिटरिंग हो रही है तो वो भी सर्विस है। हर चीज सर्विस है ना, सर्विस हर चीज है। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया है। अब इस सर्विस को लेके मैं इस सर्विस चाह रहा हूँ, वैल्यू चाहता हूँ मुझे वैल्यू मिले। किसको मिले? मेरे कस्टमर को। और वो कस्टमर कौन है? समटाइम्स me and you are the colleague. So I am delivering some services to you and you are delivering some services to me. So we are the internal customers. मतलब आईटी के डिपार्टमेंट आज का काम कर रहा है सर्विस हो रहा है। सर्विस हो रहा है। हम एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दुनिया सर्विस की दुनिया है। माँ बाप बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये सर्विस क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के थ्रू डिलीवर की जा रही है, वो जो टेक्नोलॉजी डज, टेक्नोलॉजी एक्चुअली हेल्प्स यू टू मेक योर वर्क फास्टर एंड फास्टर। नंबर 1, it converts your complex things into easier, and it provide you the value which you have actually are interested, and it is human less, so the chances of error is very very low. ये टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है? अब नाउ व्हेन वी आर टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इट मीन्स कि जो कुछ हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन के थ्रू बता रहे हैं कि ये है, और वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। भाई मेरे डिपार्टमेंट में काम हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा किसी को सामने वाले कि ये काम जो है वो हो गया। टेक्नोलॉजी होती तो जैसे ही कंप्लीट होता वो सामने वाला कहता भाई काम आ गया जल्दी करो, इट्स रेडी। तो कंप्यूटर इन्फॉर्म कर रहा है उसको कि इस डिपार्टमेंट का काम खत्म हो गया, आप उठा लें। फैक्ट्री में क्या होता है? एक एरिया के अंदर एक काम होता है, दूसरे एरिया में दूसरा होता है, तीसरे एरिया में तीसरा होता है। तो एक डिवीजन वाइज काम हो रहा है। अब एक तरीका ये है कि काम जब एक बैच बन गया, वो जाके बोले भाई बैच बन गया उठा लो, रजिस्टर पर लिख लो कि बैच नंबर ये बन गया, ये दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। यही काम किसके थ्रू करूं मैं? कंप्यूटर के थ्रू। एक सॉफ्टवेयर बना लूं, उसके अंदर डेटा डालूं, उस डेटा को आगे मूव ऑन करा लूं। अब वो बैच एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में, तो मुझे डैशबोर्ड पे नजर आ रहा है कि ये डिपार्टमेंट अपना ये बैच कंप्लीट कर लिया, अगले डिपार्टमेंट में इन प्रोसेस है। प्रोसेसिंग क्या क्या हो रही है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। मगर मुझे आई एम वेल इन्फॉर्म्ड, जब फर्स्ट टाइम नेस्ले का ये प्रोजेक्ट हमने किया, ये प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं आया था। 97 में किसी लड़के ने प्रोजेक्ट पकड़ लिया। अब वो दौड़ता हुआ आया, हम ही 2 लोग थे जो वहां पे मशहूर थे। वो आया, यार मैंने ये काम पकड़ लिया है, ये करना है। मैंने कहा भाई ना तो हमें ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम होती है चीज, अच्छा नहीं काम पकड़ लिया, ये भी नहीं पता क्या काम पकड़ लिया, यार सॉफ्टवेयर बनाना है। तो मैंने कहा क्या बनाना है? ये तो नहीं पता क्या बनाना, लेकिन है बड़ा काम, नेस्ले का काम है। अच्छा खैर मेरे साथ एक लड़का था, वो डेटाबेस का बड़ा एक्सपर्ट था, इमरान। आजकल वो उसका पूरे मिडल ईस्ट का कतर वतर सारा जितना जीसीसी है उसका वो बेसिकली ना अपना
माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफिसर। डेटा इंजीनियरिंग का था ना। उसमें आप AI पे काम करते हैं। तो वो मेरे साथ था, हम दो ही लोग थे जो प्रोग्रामिंग में बहुत उस जमाने में काम करते थे। तो लोग आते थे चल चल के, सब अभी बैंक वगैरह सब ये ERP CRP जब बननी शुरू हुई है और लगनी शुरू हुई है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी इसीलिए थी। तो मैंने कहा चलो कहाँ चलना है, चले गए हम दोनों। वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे ले गया, कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ नेस्ले तो बर्क एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, उसके पास ले गया। तो वो कहने लगा यहाँ पर ये हो रहा है। मैंने कहा यार क्या हो रहा है, वहाँ पर शुरुकियाँ लगी हुई, सामान निकाल रहे हैं, लाद रहे हैं उसके ऊपर, दौड़ दौड़ आवाज़ें, और लिख रहा है एक आदमी खड़ा हुआ। ये हो क्या रहा है यार, ये समझ मुझे नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। किससे पूछा, कोई बता नहीं था कुछ। एक लड़का था, उसने कहा भाई आपको अगर क्या करना है। मैंने कहा भाई हम फला जगह से आए, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। ये क्या होता है? मैंने कहा भाई बनाना है एक चीज़, हमें कंप्यूटर की चीज़ें बनानी है, आप हमें बताओ किससे मिले। तो देखा शाम में एक साहब आते हैं, उनसे मिलेंगे। अब 6 बजे एरिया मैनेजर एक अंकल टाइप आदमी, हमें मुलाकात हो गई। उनसे हमने कहा सर हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अरे आओ यार, हमें तो कंप्यूटर का खुद भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, होता क्या है कंप्यूटर पर, मुझे ये बताओ। कहानी कहीं और चली गई। अब हम उनसे समझने आए थे, पहला दिन वैसे गुजर गया, हम उन्हें समझा रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है, फला चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट डे हमने टाइम दिया, उन्होंने कहा टाइम नहीं है। फिर हमने कहा अच्छा, ना फोन होता था ना कुछ होता था, बड़ी मुश्किल से आदमी ट्रेस हो रहा है। खैर एक दिन हमने कहा सर अब आपकी बारी, हमारी बारी है। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, कॉपी पेंसिल लेकर आने बच्चों। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की एक सप्लाई चेन होती है, उसके अंदर एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको, कैसे ज़िले होते हैं, कैसे टाउन्स होते हैं, कैसे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने हमसे जो है वो डिस्कस की, और हमें पहली दफ़ा पता चला कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक रिटेल शॉप पे कैसे पहुँचता है। आप लोगों ने वो अंडरस्टैंडिंग दी ना बिजनेस प्रोसेस की, उसके बगैर कैसे बनेगा हाँ। सॉफ्टवेयर, उसके बगैर तो बन ही नहीं सकता सॉफ्टवेयर। तो जब हमने वो उससे सारा कुछ लिया तो हमें ये भी पता लगा कि एक कंट्री हेड होता है, उसके अंदर फिर एक रीजनल हेड होता है, फिर उसके अंदर सिटी हेड्स होते हैं, फिर उसके अंदर जो है वो एरिया हेड होता है, ठीक है। फिर एरिया हेड के नीचे जो है वो टाउन और ज़िला और इसके हेड्स होते हैं, टेरिटरी इंचार्ज होता है, ठीक है। और ये सारे लोगों के मुख्तलिफ जॉब्स हैं। मैंने कहा सर कंट्री हेड से मिला दें। कहने लगा भाई वो आएगा ना, उसके बाद टाइम नहीं। मैंने कहा सर आप मुझसे कहिएगा कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले कुछ लोग आए थे जिन्होंने, मैंने नाम दिया उसको कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। अच्छा वो कहने लगा कंट्री हेड में ना नेक्स्ट वीक आ रहा है। नेक्स्ट वीक का टाइम लिया उसने, कहा 5 मिनट थे मेरे पास उनसे मिलने के, उनसे कह दो इतने टाइम पे पहुँचे। हम लोग पहुँच गए, पैर देख के वहाँ मैं हंसा, बिल्कुल यंग थे। तो वो कहला तुम लोग बनाओगे सॉफ्टवेयर, तो पता भी है सॉफ्टवेयर क्या होता है? चला ये वो, अच्छा ना हमारी कोई कंपनी ऐसी काम कर रही थी, मेरी तो कंपनी फिर भी एक काम कर रही थी, हम जिसके थ्रू गए थे उसका तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा सर मैं आपको सीरियस बताता हूँ, हम अपना काम करते, हम 94 से बहुत काम कर रहे हैं। ये बंदा जो है इसने पकड़ा है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके पास कोई लीड है, इसको ये भी नहीं पता था क्या बनाना। मैंने 1 महीना लगा के ये सब कुछ किया है काम। मैंने जल्दी जल्दी बोला उसको, और मैंने कहा ये हम जान चुके हैं कि आपका ये प्रोसेस है, इसके अंदर आपको सिस्टम चाहिए, तो मैं समझता हूँ इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अरे बैठ जाओ। उससे जब मुझसे सुना, मैंने कहा मैं सर आपसे एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपने जो कहना कहिए। मैंने कहा आप मुझे बताएं आपका दर्द क्या है, आपका दर्द क्या है? तो उसने कहा अच्छा सुनो। उसने उठाया फोन, उस जमाने में होते थे टेलीफोन, फोन उठाया, उसने कहा अल्लाह करे लग जाए। फोन लगना भी एक बहुत बड़ा, आप समझ लें, कहते हैं ना एक लकी पॉइंट था कि आपका फोन लग गया। अब वो बैठा हुआ कराची में, फोन कर रहा है लाहौर, वो फोन कर रहा है पेशावर, वो फोन कर रहा है कोयटा। खैर उसने फोन किया, फोन मिलाया, उसने कहा यार मुझे ये बताओ
कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है आज। लाहौर की नहीं, पंजाब की सेल पूछ रहा है। अच्छा मुझे बताओ इस प्रोडक्ट की सिंध में कितनी सेल हुई है। केपी के तो जमाने में वो होता था उसका नाम, हाँ वही नाम था केपी, फाटा नहीं उसका नाम NWFP। तो उसे ए रीजन के अलग अलग लोग थे। जाहिर है फाटा में भी सामान जा रहा है ना, तो ये थोड़ी कि नहीं जा रहा है, उसके तरीके अलग थे जाने के। तो उसने 5 जगह फोन किया कश्मीर समेत। तो मैंने कहा था ये रिपोर्ट कैसे आती है आपके पास, कह रहे बना के मुझे फैक्स करते हैं अभी, और फोन तो हर वक्त खराब है उस जमाने में। कह रहे फोन पर कभी ठीक होगा तो आ जाएगा, वरना तो ये मुझे मेल करेंगे, कोई लेकर आएगा, तो ये 25 दिन में भी ये डेटा आ जाए ना मुझे कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसी महीने में डेटा आ गया। यानी जो डेटा है वो अगर पहली तारीख से बिकना शुरू हो रहा है तो पिछले महीने का डेटा आपके पास 28 तारीख को आ रहा है। और ये भी 100% नहीं है, उन सब उनको कई सारे सेल्स मैनेजर झूठ बोल रहे हैं, ये एस्टिमेटेड है। पुराना डेटा कितना आया था उसी का भी 5% ज्यादा कर दिया, कभी 3% कम कर दिया। उनके पास भी नहीं आ रहा होगा, उनके पास भी पूरा डेटा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है ना भाई, प्रोडक्ट सेल होगी तो पैसा गिरेगा ना अकाउंट में, तो इस बात की एश्योरेंस कैसे कि वो आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इस चक्कर में अब ये सारा काम आप सोचें कि जब हमने कंप्यूटराइज किया और उसने बटन प्रेस किया और उसके बाद ठक करके सेल आ गई, तो पागल हो गया। उसने कहा ये बस चीज तो सबसे पहले तो ये स्विट्जरलैंड में इम्प्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने के बाद वो स्विट्जरलैंड ले गया था, उसके बाद आप उसने कहा पूरे यूरोप में इम्प्लीमेंट होगा। नेस्ले तो नेस्ले, अब तो खैर उन्होंने उसका लेटेस्ट वर्जन बना लिया, हमने तो बना के दिया था उस जमाने में, चलवाया। अब उस डेटा के ऊपर आप डेटा का एडवांटेज देखें कि हम ही ने पकड़ के दी 3 करोड़ की चोरी को। 8 करोड़ की तो खाली कॉपी छपती थी ऑर्डर बुकिंग के लिए। उस जमाने का 8 करोड़ आज के 30 करोड़ के बराबर है। सिर्फ कॉपी छपती थी जिसमें वो ऑर्डर बुकर जाके ऑर्डर देता था, उसमें कहीं वो फाड़ देता था कि यार खराब हो गया, चलो दूसरा दो। बुकें पड़ी होती थी, पेपर वर्क था ना, सब जीरो होगी। गैप एनालिसिस, और फिर हमने उसको वो चीजें बताई। फिर यूनिलेवर मैंने किया, यूनिलेवर में पूरा डैशबोर्डिंग किया मैंने। उस जमाने में डेटा वेयर हाउस पढ़ा गया था, जिसमें लोगों को पता ही नहीं था कि डेटा वेयर हाउस होती क्या थी, आज भी नहीं पता है। तो एक्चुअली क्या है कि आपका ऑडिट आपको ये बताता है कि आपके गैप्स क्या है। अब ये गैप्स कई रिस्पेक्ट पे बताए जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट पे बताए जाएंगे, ये इंटरनल प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में बताए जाएंगे, ये ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी पे भी बताए जाएंगे, इसके अलावा आपकी मटेरियल की क्वालिटी पे बताए जाएंगे, कस्टमर के रिव्यू से बताए जाएंगे। तो हर जगह अंदर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स एनी टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिटर। अगर किसी जगह पे सही इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो आप बिलीव करेंगे वो आउटकम उसका कुछ और ही होगा ऑर्गेनाइजेशन। समझे बात को। तो ये है प्रोसेस जनाब ऑडिट का। ऊपर हमने ऑडिट की 2 शाखें बात कर ली, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इसके ऊपर कि ये क्या होता है। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है ऑडिट के प्रोसीजर है तो मेन 1 वहाँ से शुरू कर देंगे। आपकी बेस आपको समझ में आ गई होगी कि बेस क्या, ठीक है ना, कि कैसे आपने चलना है। अब ये जो ऑडिट के प्रोसीजर है ये ऑडिटर बनाएंगे, ऑपरेशंस के प्रोसीजर ऑपरेशन वाले बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जब तक आपको नहीं पता होंगे आप सही ऑडिट नहीं कर सकते। समझ आ रही बात?
तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सही ऑडिट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसका सही मानों में जो है वो क्या करें, ऑडिट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपने जो भी एग्जाम्पल्स दिए थे नेस्ले वाला जो काम किया था आपने, ये आपने किस कैपेसिटी में किया था? किसी फर्म के साथ थे या किसी नहीं नहीं, फिर हमने मेरी तो एक फर्म थी, मैंने 3D सॉल्यूशन जो आज 3D एजुकेटर है 3D सॉल्यूशन बनाई थी उस टाइम पे? अच्छा। ठीक है, तो वो फर्म हमारी बहुत अच्छे काम किया उस फर्म ने। लेकिन उससे पहले मैं CNE सर्टिफाइड हुआ था 92 में। आई वॉज इंटरमीडिएट नॉवेल के ऊपर काम हुआ, नॉवेल नेटवर्किंग होती थी सारी, या यूनिक्स जो होता था। ठीक है, तो यूनिक्स के ऊपर पहली दफा ऑरेकल आई, ऑरेकल 6 फॉर्म 2 6G कहाँ 6 हाँ, और पहला पाकिस्तान का दूसरा बैच हमने पढ़ा ओरेटेक्स में, मैंने एडमिशन लिया वहाँ पढ़ा मैंने। 94 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम था $5 होस्टिंग। तो मैं जो इसमें ISPs में काम कर रहा था जाके, तो वो ज़माने में तो लोग इंटरनेट का लोगों को पता ही था, हमारे पास फिर भी एक्सेस था चीज़ों का। तो 92 में 93 में फिर मैंने ये $5 होस्टिंग अपनी कंपनी बनाई, वो चलाई, वो 27,000 क्लाइंट है उसके वर्ल्ड वाइड, और होस्टिंग प्रोवाइड करती। और दूसरा जो थी वो ये हमने 95 में 3D सॉल्यूशंस खोली। इससे हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते थे, लेकिन असल जो काम सही मानों में हमें मिला वो हमें, क्योंकि हबीब बैंक के काम मिलते थे तो हम उसी 3D सॉल्यूशन में कर लिया करते थे। फिर हमें नेस्ले IL लिली का जब काम मिला वो बहुत बड़ा काम, 3D कंपनी